Hello, friends. You can tell me whatever doubts or maybe whatever question you have. You can ask me in WhatsApp chat as well as right now. Also, you can uh, write that whole whatever question you have in chat box. Just write whatever chat box you have. Whatever question you have, just write in the chat box. We will just start in 2-3 minutes. Till that time, whatever questions, whatever doubt you have, you can write in chat box. Okay, parents, let's start. Welcome you again. Sorry for inconvenience. There is some network issue as well as a technical issue too. So let's start. So we are talking about ADHD. I already explained you what things you supposed to do for ADHD child. You should give him lots of activity. एक्टिविटी से मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ पे मेरा मतलब है आप जो बच्चे को पसंद आए वो एक्टिविटी दीजिएगा. अगर बच्चे को डांस नहीं पसंद और आप उसे डांस करवा करवा कर रहे हो तो वो भागेगा. सो उसके इंटरेस्ट को देख के आप उसे एक्टिविटी दीजिएगा. नेक्स्ट, माय चाइल्ड डोंट वांट टू डू द होमवर्क. See, parents, maximum time. I will just want to give you one example. If you don't have any interest in any work, do you like to do that? No. So same thing apply for our children also. They don't have interest in study. So why they will do the homework? So how you can make the interest? आपको किसी भी तरीके से बच्चे को इंटरेस्ट दिलवाना है स्टडीज में. सो इंटरेस्ट को आप प्ले के थ्रू ले सकते हैं. Because you told me your child is 5 years old, so probably she is in UKG. So in that age, there is a maybe a 3 letter words और हिंदी में वो आ ई और 2 मात्रा 1 मात्रा वाले वर्ड्स, दिस मच ओनली. सो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे के साथ जब बाहर घूमने जा रहे हैं, जब आप कार में हैं, तब आपको कई दुकानों के नाम दिखाई देंगे या कई पैम्पलेट्स दिखाई देंगे, कई बैनर्स दिखाई देंगे. सो प्ले विद देम. चलो लेट्स डू वन एक्टिविटी. Let's you and me are going to read some words. Let's see who is going to read more. So let's start. She read and. You can read okay at.
So like that, you can start your game and she will love to do that. Here you are saying that she is not doing homework. Homework को थोड़ा interesting बना लीजिए. Give them a option to play. पहले चलो let's do a homework. Then we will play a teacher. Your teacher, I am a student. Or let's play in sand activity. So many techniques are there which you can improve, which you can take for improving your child interest in studies. इस टेक्निक के साथ, सैंड टेक्निक के साथ आप बच्चे की राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं. So you can use this whole techniques. My child don't listen me. See, बच्चा पेरेंट्स को नहीं सुन रहा. Why? There is a 2-3 reason. First, because what we are telling, we are not doing the same thing. We are just telling you have to keep your things in a proper place, but we are not keeping our things on a proper place. We are telling child to eat healthy, but we are not eating healthy. We are telling child to don't see the cartoon, but whenever we are getting time, we are seeing the TV, maybe movie, maybe serial. So they are not going to follow you. They are not going to listen you. They are just going to follow you. Whatever things you are going to do, they are going to follow that. They know when mama, papa is free, they are watching movie or watching serial. So same thing I am going to do. If that time you will study, I am not telling कि आप अपनी 10th 12th की books निकालिए. नहीं, न्यूज़पेपर ही पढ़ लीजिए. कुछ भी जो आप चाहते हैं आपका बच्चा करे, वो सेम चीज आपको करनी है. आपको करता देख आपका बच्चा वो चीजें फॉलो करेगा. So one reason, whatever we are saying, we are not doing. Second reason, whatever punishment we are saying that we will, if you will not do this thing, I'm not allowing you to go outside, or you are not going to see the cartoon, or we are going to send you to Masi's ghar or Nani's ghar or hostels. We are saying these words to our child, but we are not doing that. हम सिर्फ कहने के लिए पनिशमेंट्स बनाते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन करते कुछ नहीं. So child understand that they are not going to do anything. So why to take them seriously? And third thing, if you say yes, it means yes. If you say no, it means no. And this is for both parents. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मा ने हाँ कह दिया और पापा ने ना कह दिया, और पापा ने हाँ कह दिया या मम्मा ने ना कह दिया. दोनों का हाँ और ना सेम होना चाहिए. Whatever you both are saying should be same. If you are allowing child, both allow. If you are not allowing child, don't allow. So say both of you have to do the same thing. If you do these 3 things, your child is going to listen you. Your child is going to follow you. Next thing. My daughter is 5 years old and she is very emotional. So I will tell you one thing. अगर वो बहुत इमोशनल है तो उसे इमोशनली टैकल करिए. आप उसकी स्टडी से लेके उसके रेगुलर डे टू डे में उसके इमोशन पार्ट को किस तरीके से आप हर चीज में उसका इमोशन लेके आइए, क्योंकि वो इमोशनल है. आप उसे वीक मत करिए. इमोशनली वीक करने के करता आप उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग करिए. कैसे करेंगे? 1-2 चीजें मैं आपको अभी बता देती हूँ. जैसे कि आपका बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है, अगर वो अच्छा नहीं है, तब आप अपनी बच्ची को ये कह सकते हैं, बच्चा यू कैन डू मच बेटर. मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, तुम मेरी ब्रेव गर्ल हो, मेरी प्रिंसेस हो. शी विल लव टू डू दैट.
लेकिन यहाँ पे आपने स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंट किया ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाता, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती, then she is going to be emotional weak. Her emotional part is always weak. So try to I will say मजबूत करिए उसको, इमोशनली बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाइए, उसका इमोशनल पार्ट को उसका पावर बनाइए, उसका वीकनेस मत बनाइए. Child getting angry every time, he never listen to me. First thing, पहले तो जो आपको जो मैंने टेक्निक कही, आप जब वो फॉलो कर रहे हैं, जो मैप बनाने के लिए कहा, आप वो मैप बनाए, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप मैप बना रहे हैं तब आप सिर्फ बच्चे को ब्लेम नहीं करें, बच्चे को टैग ना करें. आप बोलो मेरे को भी गुस्सा आती है, मैं भी ये मैप ट्राई करूंगी या ट्राई करूंगी. Then the child is going to do. When every time we are tagging a child or we are saying he only do the anger, he only shout, he only do everything, hitting, whatever things we are telling, only tagging him, तो बिलीव मी सबकॉन्शियस माइंड उस बच्चे को वैसा बनने के लिए मजबूर करता है. सो स्टॉप टैगिंग एंड ट्राई टू डू वट एवर एक्टिविटी आई टोल्ड, जस्ट ट्राई. My child is denying to do that activity. Of course, parents, many of you, I will say many times parents told me कि मैम जब हम ये सारी चीजें अपने बच्चे से करवाते हैं तो बच्चा हमें रिफ्यूज कर देता है. इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है, हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो जब भी हमें कंफर्ट जोन से कुछ अलग करना हो हमें प्रॉब्लम आती है. सो उसके लिए आपको बच्चे को एक प्रॉपर लॉजिक देना जरूरी है, चाहे वो टाइम टेबल बनाना हो, रूटीन बनाना हो, एंगर मैनेजमेंट का मैप बनवाना हो, या जो हमारा गोल बनाना हो, उन सब के लिए आपको रीजन देना बहुत जरूरी है. जब आप रीजन देंगे, लॉजिकली रीजन देंगे, तभी बच्चा वर्क करेगा, अदरवाइज वो उस चीज से भागेगा. सो पेरेंट्स, यू कैन स्टिल गिव मी अ क्वेश्चन, बट वी विल सी. अगर इन केस मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाती हूँ बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपके आंसर्स वहां पे भी दूंगी. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर एक्टिविटी विच आई गिवन यू यस्टरडे. मैंने आपको एक इमेज दी थी और आपको वो इमेज दिखानी थी और खुद देखनी, और आपको मुझे फीडबैक देना था कि आपको उसमें क्या दिखा. Many parents told me they are seeing a young lady. Many parents told me they are seeing an old lady. Many parents saying they are seeing further. So many things you told me. Now I will tell you the most important thing, that none of you are wrong. आप में से कोई गलत नहीं, सबने अपने जो भी चीजें देखी, जो भी उस इमेज में देखा, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने व्यू से देखा. ये एक्टिविटी मैंने आपको क्यों दी? हम कई बार कहते हैं ना कि बच्चा हमें समझ नहीं रहा, बच्चा हमारी बात नहीं समझ रहा कि हम उसे ये क्यों करवाना चाहते हैं, वो गलत बोल रहे हैं. यहाँ पे वो इमेज को देख के सोचिए, क्योंकि आपको आपकी जगह से हो सकता है यंग लेडी दिखाई दे रही हो या ओल्ड लेडी दिखाई दे रही हो, लेकिन इस बच्चे को उसकी जगह से वो ऑपोजिट दिखाई दे रहा है. अगर आपको यंग लेडी दिखाई दे रही है तो उसको ओल्ड लेडी दिखाई दे सकती है, अगर आपको ओल्ड लेडी दिखाई दे रही है तो उसको यंग लेडी दिखाई दे सकती है. सो देयर इज अ डिफरेंस, बट नन ऑफ यू आर रॉन्ग. आप दोनों में से कोई गलत नहीं. सो जब आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं तो आपको बच्चे के लेवल से, बच्चे के व्यू से देख के उस प्रॉब्लम को समझनी होती है और उसको समझानी. सो पेरेंट्स, नाउ I really want to tell you a short story which is going to help you.
in parenting. So let's see the story, and till that time you can give me whatever question you have. I will try to give your answer in that live chat. If not possible, then you can send me the same questions in my WhatsApp number. I will give you the answers. Okay. So let's start the story. एक बार एक पर्सन अपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है, उसका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके पास होती है, सो वो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पहुँचता है। जिस प्लेस पे जाता है वहाँ का जो गेट है वो आधा खुला आधा बंद होता है, तो वो अंदर जाता है और उसके बाद वो गेट बंद कर देता है। उसके बाद जब वो आगे रिसेप्शन पे जाता है, वहाँ पे अपनी बात बोलता है कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। सो वहाँ पे वो जो लेडी है वो उसे जहाँ बाकी के लोग बैठे थे वहाँ पे बैठने के लिए बोलती है। जब वो वहाँ पे बैठता है तो वो देखता है कि जो वहाँ पे बुक्स रखी हुई है, जो वहाँ पे मैगजीन्स रखी हुई है, वो सर्टन सही ढंग से नहीं रखी है, सिर्फ फैला के रखी हुई है। वहाँ पे पेन रखा हुआ है जो कि होल्डर के अंदर नहीं है। तो वो ये सारी चीजें देखता है। वो बैठे बैठे ही वहाँ पे वो बुक्स को एक जगह प्रॉपर जगह पे रख देते हैं, पेन को होल्डर के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ पे जितने लोग हैं काफी एक्सपीरियंस है। तो उसे लगता है आई रियली डोंट नो कि मेरा इस जॉब में सिलेक्शन होगा कि नहीं। उसका बैठे बैठे ध्यान जाता है कि जहाँ पे सारे लोग हैं उधर साइड में, जो साइड में एक रूम है, वहाँ पे फैन ऑन था। सो जस्ट वहाँ पे लाइट और फैन ऑन थी, इस वजह से वो वहाँ पे जाके लाइट और फैन ऑफ कर देता। उसके बाद उसका नंबर आता है, उसकी चांस आती है इंटरव्यू की। तो जब वो इंटरव्यू देने जाता है उस टाइम पे वहाँ पे जो डोर मैट रखा होता है वो थोड़ा साइडली काउंटी टेढ़ा होता है। वो उसको स्ट्रेट करता है और उसके बाद रूम के अंदर जाता है। तो जब वो रूम के अंदर जाता है तो वो बहुत नर्वस होता है, बिकॉज मुझसे क्या पूछा जाए। एंड आपको पता है वहां पे उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। सरप्राइज? जस्ट थिंक, जस्ट टेल मी व्हाई ही वाज सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। जैसे कि मैंने आपको कहा वहां वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जस्ट चैट मी राइट नाउ व्हाई ही वाज सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वहां पे जो लोग थे उनको एक्सपीरियंस था, उसके बाद भी वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, वो बंदा क्यों सिलेक्ट हुआ? यस यस, यू आर राइट, यू आर, ही इज सिलेक्टेड बिकॉज व्हाट ही डिड। वहां पे वो क्वेश्चन पूछता है बिकॉज ही इज ऑल्सो सरप्राइज, जैसे आप सरप्राइज है कि मैं सिलेक्ट क्यों हुआ। बिकॉज वो जब से आया वहां पे उसने पूछा कि मैं सिलेक्ट क्यों हुआ, तो जो पैनल पे लोग बैठे थे उन्होंने बोला आपका इंटरव्यू रूम पे आने से शुरू नहीं हुआ, आपका इंटरव्यू रूम पे आने पे फिनिश हुआ। यस, रूम पे आने पे फिनिश हुआ। जब आप आए पूरे जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम आपको तब से देख रहे हैं, इनफैक्ट आपको नहीं हम सबको तब से देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। आप आए, आप यहाँ पे जैसे ही आए आपने गेट बंद किया, आप जहाँ बैठे थे वहाँ मैगजीन्स बिखरी हुई थी, आपने उसे ढक से रखा। उसके बाद आपने जस्ट अ सेकेंड ना, ओके, उसके बाद आप जहाँ बैठे थे वहाँ मैगजीन आपने प्रॉपर तरीके से रखी, पेन को आपने होल्डर में रखा। फिर आपने देखा वहां पे लाइट फैन ऑन थे, आप लाइट फैन ऑफ करके आए। आप रूम पे आने से पहले आपने देखा डोर मैट स्लाइटली टेढ़ा था, तो आपने वो भी ठीक किया और उसके बाद आप अंदर आए। ये सारी चीजें वही इंसान कर सकता है जिससे परफेक्ट होने की आदत है, जो हर चीज परफेक्टली चाहता हो, जिसको ये हैबिट हो। सी, सडन आप परफेक्ट नहीं बन सकते, ये सारी चीजें हमें बचपन से आती है। Which type of our parenting style, which type of parenting style parents use, that style make us perfect.
सो यहाँ पे उसकी वो हैबिट उसी दिन नहीं बनी, वो उसकी बचपन से आई. एंड व्हेन he selected for the job, first thing what he did, he thanks his parents. उसने अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहा, क्योंकि बचपन में जो चीजें उसे बुरी लगती थी, वो फील करता था कि हाँ ये सारी चीजें गलत हैं, मुझे बेमतलब में चीजें क्यों सही जगह पे रखाई जा रही, यहाँ रहे या वहां रहे, बात तो एक ही है. वो चीजों की से इम्पोर्टेंस उस इंटरव्यू के बाद समझ. पेरेंट्स, ये जो बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं ना, आईपीएस के, आईएएस के, ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे वो इंटरव्यूज देता है, जब एग्जाम सिलेक्ट होने के बाद जब इंटरव्यूज होता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां जब इंटरव्यू रखती हैं, तो आपको क्या लगता है, वो सिर्फ आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस देखती है? नहीं, वो सबसे ज्यादा आपका पर्सनालिटी चेक करती है. पर्सनालिटी चेक करने के बहुत सारी चीजें होती हैं. आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, आप कितने क्रिएटिव हो, कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कितना ज्यादा अच्छा है, डिसीजन मेकिंग आपका कितना अच्छा है, ये सारी चीजें, इसके सिवाय बहुत सारी चीजें वो देखते हैं. वहां पे पैनलिस्ट में बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं. ये सब के बाद, ये सारी चीजों के बाद उस बंदे का या उस बंदी का सिलेक्शन होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सर्टन, अगर हमने बचपन से जो चीजें नहीं सीखी, सो हम सर्टन वो चीजें नहीं सीख सकते. तो इंटरव्यू जाने से पहले हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकते कि हाँ कल मेरा इंटरव्यू, आज मैं सारे अच्छे से डिसीजन मेकिंग सीख लूंगी और ये स्किल सीख लूंगी, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख लूंगी, लर्निंग सीख, सब मैं एक दिन पहले सीख के जाऊंगी और जिससे मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी. ये पॉसिबल नहीं है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. और ये चीज सिखाना सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स कर सकता है और कोई नहीं. ओनली पेरेंट्स कैन डू दिस थिंग. पेरेंट आजकल हर जगह अपडेशन चल रही है, अपग्रेड होते रहते हैं हम लोग. हमारे बच्चे को हम अपग्रेड करते हैं, हमारे फोन को हम अपग्रेड करते हैं, हमारे घर को हम अपग्रेड करते हैं, हर चीज में अपग्रेड होता है. बट हम कई बार अपनी घिसी पिटी पेरेंटिंग स्टाइल चलाते हैं, वो पेरेंटिंग स्टाइल जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की है. आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, प्लीज, दे आर वेरी करेक्ट. उन्होंने जैसे आपकी अपब्रिंगिंग की वो बहुत अच्छी की, लेकिन तब सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है. देयर इज अ जनरेशन गैप एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गैप. आपको ये गैप समझना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा. क्योंकि जब आप छोटे थे तब मोबाइल नहीं था, आप छोटे थे तब कोरोना भी नहीं था. कहाँ हमने स्कूल से स्टडी, स्कूल की स्टडी घर बैठ के कभी करेंगे ऐसा सोचा था? आज हमारे बच्चे वो कर रहे हैं. आज हमें उन्हें फोन देना पड़ रहा है, जिस चीज से हम उन्हें दूर रखते थे आज हमें वो देना पड़ रहा है. तो हम कैसे अपने बच्चे को फोन भी दें और उसके साइड इफेक्ट से रोकें? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको एंगर मैनेजमेंट समझा दिया, लेकिन एंगर रीजन क्या है? मैनेज आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर एंगर नहीं आया तो. स्टडी स्किल समझा दी, आप उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप उसमें और किस तरीके से अपने बच्चों को इंटरेस्ट ला सकते हैं वो समझ बता दी. लेकिन वो हैबिट उस बच्चे के अंदर खुद से कैसे डेवलप होगी वो जानना जरूरी है. आप अपने बच्चे के पीछे खाने के लिए दौड़ते रहते हैं कि हेल्दी फूड खा ले, हेल्दी फूड खा ले, हेल्दी फूड खा ले, और वो बर्गर, पिज्जा, वेफर्स खाता रहता है. आप ऐसा क्या करें कि बच्चा आपके खाने के पीछे दौड़े, हेल्दी फूड्स के पीछे दौड़े. आप ऐसा क्या करें कि बच्चा गैजेट के जो मैं कहूंगी जो साइड इफेक्ट्स है उनसे दूर रहे. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको मिलेगा. सी पेरेंट्स, मेरा नेक्स्ट लेवल है, जो मेरा नेक्स्ट कोर्स है, उसमें आपको जो मैंने कल 40 क्वेश्चंस डाले थे,
उन सारे 40 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आप जो अपने बच्चों को एक सुनहरी लाइफ देना चाहते हैं, इमोशनली जो उनके साथ एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक उनके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, वो बॉन्ड आप कैसे बनाएं? उनकी प्रॉब्लम, जो उनकी टीनेजर प्रॉब्लम्स हैं, या जो उनके फियर्स हैं, या जो उनके मैंने जो 8 स्किल्स बताए थे, अगर आपके बच्चे की वो 8 स्किल्स में से कोई 8 स्किल डेवलप नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ स्किल्स ज्यादा डेवलप होते हैं, कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंसी ज्यादा डेवलप होती है, कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंसी कम डेवलप होती है। सारी की सारी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी हम अपने बच्चे की कैसे डेवलप करें, उन सबकी कौन सी एक्टिविटी करें, वो सब आपको मेरे नेक्स्ट कोर्स में पता चलेगा। दैट इज ब्लूप्रिंट टू मेक योर चाइल्ड जीनियस। यस पेरेंट, ब्लूप्रिंट टू मेक योर चाइल्ड जीनियस। इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं, जैसे रेजिंग अ थिंकर, डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चंस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, गैजेट डिटॉक्स, moral value. This all you will get in this blueprint. Let's see in detail कि रेजिंग अ थिंकर के अंदर क्या क्या है। रेजिंग अ थिंकर 6 डे का प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट डे पेरेंटिंग स्टाइल है। पेरेंटिंग स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बच्चे के साथ जो बॉन्ड बनाना है, आपको अपने बच्चे के साथ जो एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है, जो एक हैप्पी फीलिंग लानी है, आपको अपने बच्चे को कैसे बड़ा करना है। सी, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हमें बिल्डिंग अच्छी बनानी है, मजबूत बनानी है, तो हमें उसका फाउंडेशन, जो उसका पिलर है, वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं आपको उसके पिलर्स के बारे में बता रही हूँ। ये सारी चीजें, ये पिलर्स हैं। पेरेंटिंग स्टाइल एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। आप कौन सी स्टाइल यूज करते हैं, वो स्टाइल, और कौन सी स्टाइल सही है, वो आपको इसमें पता चलेगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। हम ये पावर, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, मोस्टली आई थिंक यहाँ पे बैठे 99% लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता होगी, लेकिन उसे एक्टिवेट कैसे करना है ये नहीं पता होगा। ये आपको इस 21 डेज में पता चलेगा कि आप कौन सी एक्टिविटी अपने बच्चे को कराए कि उसकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर बूस्ट हो। आप अपने बच्चे को कैसे क्रिएटिव बनाए, कैसे एक डिफरेंट तरीके से उसे सोचते हैं, वो आप इस 21 डेज में सीखेंगे। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें, ये सारी चीजें आप इस 21 डेज में सीखेंगे। हैक्स ऑफ कंट्रोल एंगर मैनेजमेंट। इसमें ये जो हैक्स हैं, ये हैक्स में आपको रीजंस पता चलेंगे कि बच्चे को गुस्सा क्यों आता है। यहाँ पे हैक्स, मैंने मैनेजमेंट आपको पहले ही बता दिया कि कैसे मैनेज करना है, लेकिन रीजन, इस हैक्स के अंदर आपको उसके रीजंस पता चलेंगे कि आपको उसके एंगर के पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि अगर आपने वो जान लिया तो आपने अपने बच्चे के साथ आधी जंग जीत ली, पेरेंट्स, क्योंकि उसे फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। सो these 6 things you are going to learn raising a thinker. This is the 6 days program, and then our next is relationship management, that is a 2-day program, जहां हम अपने बच्चे के साथ एक लवेबल रिलेशन कैसे बना सकते हैं। उसके सिबलिंग, आजकल सिबलिंग फाइट्स बहुत होती है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे उसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर पता चलेगी। डेवलप मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इसके अंदर आपको आपकी जो 8, आपके बच्चे की जो 8 इंटेलिजेंसी है, क्योंकि सारी इंटेलिजेंसी डेवलप नहीं होती है, लेकिन मैं आपको सारी एक्टिविटीज बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ पढ़ की चीजें नहीं है, यहाँ पे एक्टिविटीज है। इस एक्टिविटीज को आपने किया तो आपके बच्चे की 8 डेवलपमेंट स्किल्स, इंटेलिजेंस स्किल्स डेवलप हो जाएगी, जिससे उसकी लर्निंग, उसका फ्यूचर सब कुछ ब्राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट,
जो 3 हमारे मेन क्वेश्चंस होते हैं, EQ, IQ, SQ, वो सारी चीजें आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो आप यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि अभी एक पेरेंट का क्वेश्चन था कि मेरी बच्ची इमोशनली मतलब बहुत ही इमोशनल है। सो उसका इमोशनल पार्ट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग, उसका एक पिलर की तरह यूज कर सकते हैं, एक हथियार बना सकते हैं उसका, उसकी वीकनेस की जगह उसका स्ट्रेंथ बना सकते हैं। वो आपको ये 3 डेज में पता चलेगा। सो हर सेशन के बाद आपको हर 5-6 डेज के बाद 7 डे आपका लाइव सेशन होगा। 7 डे आपको लाइव सेशन, आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही है उस लाइव सेशन में रहेगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे मैं आपके पास रेगुलर आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रहूंगी जब तक ये कोर्स चलेगा। गैजेट डिटॉक्स, जो कि आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे बच्चे को एक तरीके से कोरोना ने ये आशीर्वाद दे दिया है, मैं कह दूंगी, या श्राप दे दिया है कि बच्चा गैजेट के साथ दिन भर रह सकता है। आप जब भी पूछो, अरे मम्मा मैं स्कूल का काम कर रहा था, मैं ऑनलाइन स्टडीज कर रहा था, या मैं प्रोजेक्ट बना रहा था या बना रही थी, सो वो गैजेट में पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। सो आप वो डिटॉक्स कैसे कर सकते हो, कैसे आप बिना उन्हें डांटे, बिना उन्हें मारे आप इसे डिटॉक्स कर सकते हो, वो आपको इस 2 दिन में पता चलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम सब जानते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मोरल वैल्यूज मिले, बट वो मोरल वैल्यूज कैसे दी जाए वो आपको इस डे 1 में पता चलेगा। इसके अंदर आप हर छोटी छोटी मोरल वैल्यूज, इनफैक्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए वो भी चीजें बताए। सी, मैं यहाँ पे कोई संत कबीर बन के आपको भाषण नहीं देने वाली कि आपके बच्चे को संस्कारी कैसे बनाए या क्या करें, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। यहाँ सिर्फ एक्टिविटीज रहेंगी और वो सारी एक्टिविटीज आपको करनी होगी, बिकॉज आई बिलीव इन एक्टिविटी, आई रियली डोंट बिलीव इन लेक्चर। क्योंकि सुनने के लिए हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, हमें जब मौका मिले हम यूट्यूब पे अपना टॉपिक डाल के उसके बारे में सुन सकते हैं, but I am going to give you the activities which is going to helpful for your child as well as for you too. So parents, उसके साथ मैं आपको, मेरा जो कोर्स है उसमें हेल्दी फूड हैबिट, जैसे कि मैंने कहा हम सब अपने बच्चों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि आप ये खाओ, आप हेल्दी फूड खाओ, आपको ये खाना चाहिए, आप जंक फूड मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ। लेकिन आपका बच्चा अगर आपके पीछे दौड़े कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, ये ड्रीम नहीं है, ये सच में आपकी विश पूरी हो सकती है। आप अपने बच्चे को हेल्दी फूड कैसे खिला सकते हैं वो आपको इसके अंदर पता चलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा स्टबर्न है, सो स्टबर्न चाइल्ड को कैसे डील करें, बिना मारे, बिना डांटे। आप अपने स्टबर्न चाइल्ड को कैसे उसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं वो आपको इस 21 डेज में पता चलेगा। सो पेरेंट्स, ये सारा जो चीजें हैं, जो मेरा मेन कोर्स है उसका कॉस्ट है 31,995 मेरे उस पूरा मेन कोर्स का चार्ज है 31,995। और जो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, जो मैंने आपको कहा आपको चाइल्ड आपका स्टबर्न है, आप कैसे डील करें, हेल्दी फूड हैबिट और मोरल वैल्यू, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी। साथ में दैट इज अ बिग थिंग, DMIT टेस्ट, जो मैंने आपको अपने 4 डे में बताया था। आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, आप चाहे तो बाहर मार्केट में देख सकते हैं कि DMIT टेस्ट क्या है। ये आपके फिंगरप्रिंट से आपका ब्रेन के कौन कौन सी चीजें डेवलप है, कौन सी स्किल्स डेवलप है वो बताता है। आपको किस टाइप से स्टडी करनी चाहिए, आपके बच्चे की स्टडी स्किल कौन सी है ये बताता है। आपके बच्चे के लिए कौन सा करियर लाइन सही हो सकता है वो बताता है। सी, मैं अगेन आपको कह रही हूँ सही हो सकता है, क्योंकि कई चीजें, मान लीजिए आपके बच्चे की कोई
स्किल, जो 8 डेवलपमेंट अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसमें से कोई इंटेलिजेंसी डेवलप नहीं हुई, तो जो मैं आपको एक्टिविटीज बता रही हूँ उसके थ्रू आपने डेवलप कर ली तो आप अपने बच्चे का करियर चेंज कर सकते हैं। सो आप वो सारी चीजें डीएमआईटी के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सी जगह पे हाई है, कौन सी जगह पे लो है, उसके लिए कौन सी स्ट्रीम सही रहेगी, जो राइट नाउ जो उसकी फिंगरप्रिंट के वो है, और किसमें अगर वो कहीं पे वीक है, अगर आप चाहते हैं चीजें चेंज करना तो आप उस पर वर्क कर सकते हो, वो चीजें चेंज कर सकते हो। सो मेरा ये टोटल कोर्स, मेरा ब्लूप्रिंट टू मेक योर चाइल्ड जीनियस प्लस जो मैं आपको सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स दे दूँ, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स की प्राइस है मेरी 11,996। ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स की प्राइस है। साथ ही मैं आपको बहुत सारे बोनसेस देने वाली हूँ, जैसे कि आपने देखा है जो मैंने आपको आज तक अभी जो 5 डेज में बोनसेस कहा था मैंने वो फुलफिल किए। सो यहाँ पे भी आपको ये बोनसेस मिलेंगे। बोनस नंबर 1, अगर आपने आपके एक बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट मैं फ्री में करके दे रही हूँ, जब आप 21 डेज का कोर्स लेते हैं तब आपको डीएमआईटी टेस्ट फ्री में मिलता है। इट्स मीन आपके एक बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट फ्री में आता है इस 21 डेज के कोर्स में। बट अगर आपका दूसरा बच्चा है या आपके कजिन का या आपके फैमिली मेंबर में कोई बच्चा है, उसका डीएमआईटी टेस्ट मैं हमारे ये कोर्स के प्राइस में 50% में मैं करके दूंगी। 50% में आपके सेकेंड चाइल्ड का डीएमआईटी टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, ड्यूरिंग अ कोर्स आपको अगर कभी भी किसी भी कंसर्न कोई भी क्वेश्चन हो, सो आपका वो कंसल्टेशन फ्री रहेगा। आप जब चाहे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, तो वो सारे डाउट्स मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट बोनस नंबर 4, एडीएसडी एंड एलडी चेकलिस्ट। ये नाम हमने बहुत बार सुना है, एडीएसडी एंड एलडी। कई बार हमारी इंफॉर्मेशन आधी होने की वजह से हम अपने बच्चे को खुद ही टैग कर देते हैं कि वो एडीएसडी है या एलडी है। सो मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगी, उस चेकलिस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बच्चा एलडी और एडीएसडी है या नहीं। यस पेरेंट, डीएमआईटी इज फी आपकी जो है वो आप जब ये 21 डेज का कोर्स करते तो ये फ्री है। इफ आई एम नॉट क्लियर आई विल टेल यू अगेन, आपके बच्चे का डीएमआईटी, आपके एक बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट हम फ्री में करके देंगे अगर आप ये 21 डेज का कोर्स करते हैं तो। बोनस नंबर 5, 80% डिस्काउंट ऑन माय कंसल्टेशन फॉर फुल लाइफ। आप आपको जब भी अपने बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। सी राइट नाउ मैं 1000 रुपीज चार्ज करती हूँ, सो 80% डिस्काउंट यानी 200 रुपीज। उसमें अगर आप 1-to-1 आना चाहते हैं 1-to-1, मतलब फेस टू फेस चाहते हैं फेस टू फेस, जूम के थ्रू चाहते हैं जूम के थ्रू, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे की जो भी काउंसलिंग है मैं करके दूंगी। बट आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट पहले लेनी होगी और उसके हिसाब से आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी काउंसलिंग है वो आपको मिलेगी 80% डिस्काउंट के साथ। एंड 6th, लाइफ टाइम एक्सेस फॉर ऑल द वीडियोस। ये सारी वीडियोस आपके साथ रहने वाली है, जहां पे आप अटके, जहां पे आपको प्रॉब्लम आई, आप ये वीडियोस वापस से देख सकते हैं। सो पेरेंट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो मेरी ब्लूप्रिंट टू मेक योर चाइल्ड का जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया 3199, साथ में जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है उसका वैल्यू है 11,996। जो मेरा बोनसेस, जो मैं आपको 6 बोनसेस दे रही हूँ,
उसका वैल्यू है 11908। ये मैंने अप्रॉक्स आइडिया लगाया है, ये जो वैल्यूज और जो क्या कहते बोनसेस है उसका मैंने अप्रॉक्स आइडिया लगाया है, जो मैंने आपको दिखाया। ये सारा टोटल कोर्स 55,000 का होता है, बट आपको स्पेशल ऑफर जो मेरी ब्लूप्रिंट टू मेक योर चाइल्ड जीनियस प्लस मेरे ये 4 एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स प्लस DMIT प्लस 6 बोनसेस, ये सारी चीजें जो मेरी रेगुलर प्राइस है वो 999 है, 999, बट स्पेशल ऑफर फॉर यू, मेरे इस कोर्स में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। दैट इज द कोर्स इज 1999 ओनली, 1999 ओनली। यस पेरेंट्स, मैंने ये कोर्स का प्राइस कम क्यों रखा है, उसका सबसे बड़ा रीजन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं डिस्लेक्सिक थी। मैंने बहुत सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ माय पेरेंट सपोर्ट, मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में हासिल की हैं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैंने खुद से डेवलप किया है। एक डिस्लेक्सिक चाइल्ड आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा है, आपको सिखा रहा है, उसके लिए मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितना डेवलप किया होगा, मैंने अपनी स्टडी स्किल्स को कितना डेवलप किया होगा कि आज मैं आपको ये चीजें बता सकती हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको इतने कम प्राइस में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम हो। आई एम द लकी वन कि मुझे ये सारी चीजों को फेस करने की पावर मिली, एंड दैट्स व्हाई आई वांट कि कोई और इस सब चीजों में सफर ना करे। इसलिए मैं ये आपको कोर्स इतने कम प्राइस में दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिंक रखी है, ये लिंक मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर भेज रही हूँ, इनफैक्ट भेज दी है। आप इसके पे क्लिक करके मेरे 1999 कोर्स के अंदर आ सकते हैं। पेरेंट्स, ये बहुत छोटी अमाउंट है आपके बच्चे को जीनियस बनाने के लिए। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे रही हूँ, बस आपको क्या करना है, उस पर चलना है। हम हमेशा भगवान से, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि प्लीज मेरे बच्चे को उसका फ्यूचर ब्राइट कर दो, उसके लिए मैं कुछ भी करेंगे, जो आप कहेंगे वो सारी चीजें हम करेंगे। मन्नतें मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली, यूनिवर्स ने आपको कह दिया तथास्तु, बस आपको वो चीजें करनी है, आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। DMIT फॉर सेकेंड बेबी, आपको आपका जो सेकेंड बेबी है उसका DMIT टेस्ट आपको जो मेरा जो कोर्स है उसके 50% में हो जाएगा। फर्स्ट बच्चे का आपको फ्री रहेगा, सेकेंड का आपको 1999 के 50% में मैं आपको आपके सेकेंड बच्चे का करके दूंगी। आई थिंक मिस्टर गौरव यू गॉट द आंसर। सो whatever thing you want from your child, जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी चीजें आप चाहते थे कि आपका बच्चा करे लेकिन आपको समझ नहीं था कि आपका बच्चा कैसे करे, वो चीजें कैसे करनी है, वो टेक्निक मैं आपको देने वाली हूँ, वो आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ। एंड सी अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो 21 डेज है वो सिर्फ लेक्चर नहीं है। हर डे मैं आपके लिए कुछ एक्टिविटीज लाऊंगी और आपको वो एक्टिविटीज करनी होगी, तभी आप अपने बच्चे का फ्यूचर जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका बच्चा चाहता है वैसे बनेगा। एंड बिलीव मी पेरेंट्स, अगर आपने ये सारी एक्टिविटी की तो आपको और आपके बच्चे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सो पेरेंट्स थिंक अबाउट दिस, सिर्फ 1999, इतना 95 रुपीज पर डे, 95 रुपीज ओनली। 95 रुपीज का हम अपने बच्चे को एक दिन में जंक फूड ला के देते हैं ना, वो भी इससे ज्यादा हो जाता है।
सो यहाँ आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आप उसे कुछ जंक फूड नहीं देंगे, आप उसके लिए एक लाइफ लॉन्ग एक ऐसी चीज देंगे जो उसके साथ हमेशा रहने वाली है। सो ये आपको सोचना है, आपको 1999 डालने हैं या नहीं। सी मेरे कोर्स में आपने अपने इस ग्रुप पे भी देखा है, मैं बहुत ही कम लोगों को रखती हूँ, बिकॉज मैं हर पर्सन की मैं फीलिंग्स और उसके जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकूं, इस वजह से आई एम इन। ओ ग्रेट, वेरी गुड परेश जी, यू आर इन। Congratulations to you, Mr. Sunil. Congratulations to you. See, now students, now parents started coming. Again, I am telling you, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के लिए, और ये बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत ही छोटी अमाउंट, और इस अमाउंट से आप अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, कई बार हम में से कई लोग होते हैं जो आपको हम लोग मन्नतें मांग लेते हैं, हम लोग मन्नतें मांगते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा तो हम 2000 रुपए का 3000 रुपए के ये चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो आपके फुल जो लाइफ की मन्नतें वो भी इससे ज्यादा होंगी। सो पेरेंट्स थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। DMIT टेस्ट जो आपको मैं इतने कम अमाउंट में दे रही हूँ, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये 21 डेज सिर्फ लेक्चर नहीं है। इफ यू आर रेडी टू डू एक्टिविटीज देन ओनली कम, अदरवाइज यू विल से मैम ने तो बहुत काम करवा लिया। आप एक्टिविटीज करने के लिए रेडी है, देन कम टू मी, देन कम फॉर दिस 21 days. Okay parents, I think little confusing with just a minute. Mr. Gaurav has some confusion regarding the fee. The fee for this course is 1999, 1999 only. Krishna is already joined. Welcome Krishna. Okay parents, now let's move to and आपकी अगर कुछ यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रह गए हैं, आप मुझे पर्सनली वापस से व्हाट्सएप में ये क्वेश्चंस भेजिए, मैं आपको इन सब के आंसर्स दूंगी। एंड थिंक अबाउट 199 and then only think when you are ready to do the activity. If you are not ready to do the activity, please don't enroll yourself, because मैं यहाँ पे एक्टिविटीज ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी पसंद है, लेक्चर नहीं। Okay parents, so see you in my 21 days course, because I'm getting lots of positive response from your side, and many of you already joined also. So those who are joined, welcome you in 21 days, and those who are thinking, please think fast. Okay, take care, bye bye, thank you.